Hello friends, welcome to our Knowledge Hub Gyatva. Today we are going to start chapter number 3 of class 6, that is landforms and life. So the major types of landforms are, first, mountain. So mountains are the elevated areas with steep slopes, often with peaks formed by any folding activities or the volcanic activities. जैसे हम लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हिमाचल, विंध्याचल, वेस्टर्न घाट्स एटसेट्रा. जो सेकंड कैटेगरी है वो है हिल्स. तो हिल्स आर द स्मॉलर and less steep structures than the mountain, and hills often form through the erosional or the volcanic activities. We have lots of hills, महादेव hills, बैतूल की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कई सारी hills पाई जाती हैं etc. The third landform is plateau. So plateau is a elevated flat topped areas created by any sort of volcanic activity or the upliftment of the land. For example, Malwa Plateau, Shillong Plateau, Deccan Plateau, Chota Nagpur Plateau etc. And fourthly, the plains. So plains are large, flat or gently rolling areas usually formed by the sedimentations or the sediment deposited by the river over a period of time. For example, plains of North India made by mighty rivers of Indus, Ganga and Brahmaputra. Our next landform is valleys. So valleys are the low areas between mountains or the hills, often covered by the rivers or glaciers. जब दो mountains के बीच में कोई glacier या रिवर फ्लो करती है वो अपनी अपनी वैलीज़ बनाती है. जनरली जो रिवर्स अपनी वैलीज़ बनाती है उनको वी शेप वैलीज़ कहा जाता है और ग्लेशियर्स वैलीज़ बनाती है उनको यू शेप वैलीज़ कहा जाता है. आवर नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज डेजर्ट. सो डेजर्ट इज़ अ ड्राई एरिड रीजन विद लिटिल वेजिटेशन शेप्ड बाय द विंड्स और द वाटर इरोजन. थार एरिया, द लद्दाख एरिया इज द सम ऑफ द डेजर्ट्स. आइदर थार इज ए हॉट डेजर्ट एंड लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट. Our next landform is canyon. So canyon are the deep narrow valleys with steep sides often covered by the rivers over millions of years. Right? Our next landform is islands. So land masses surrounded by the water from by the volcanic activity or the coral growth or the rising of the sea level. तो हमें जो भी islands मिलते हैं कहीं ना कहीं समुद्र हैं और वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं. Our next landform is peninsula. So peninsula is a land surrounded by water on three sides extending into the body of water. For example, Indian Peninsula, Kamchatka Peninsula, right? ये सब examples हैं. Our next landform is delta. So delta landforms are found in the river mouths where sediments built up creating fertile flat areas. तो जनरली आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नाइल रिवर वैली डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी रिवर डेल्टा, दे आर द सच एग्जांपल्स वेयर वी हैव जाइंट डेल्टाज. नाउ सो फार अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं कितने तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्या लैंडफॉर्म्स हमारी दैनिक एक्टिविटी या हमारी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? येस, दे हैव लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ. सो व्हाट आर दिस, ये क्या हो सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं. सो द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द लैंडफॉर्म्स ऑन द सोसाइटी. सो ईच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द शेपिंग इकोसिस्टम एंड इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्टिविटी. लैंडफॉर्म्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़. जितनी भी ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, यदि इंडियन कल्चर देखते हैं, इंडिया कल्चर बहुत पुराना कल्चर माना जाता है. ये मुग़ल काल से पहले जो हिंदू काल हुआ करता था, वैदिक काल हुआ करता था, उससे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो का काल हुआ था. उन सब से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है और कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म्स, एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स उनकी कल्चर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस किया करते थे. So landform play a significant role in shaping the life and the culture of human societies. Their influence is seen in various aspects such as, number one, you can say the settlement pattern. So the settlement pattern is the landforms, generally जहाँ पे landform होते हैं like rivers, valleys and coastal plains and often provided fertile soil. Generally जो हम लोग बात करते हैं coastal plain की, they often provides the fertile soil and water resources leading to the establishment of cities and civilizations. People have some historically settled towns, cities, for example Agra, वाराणसी, मथुरा, अवंतिका, सब जो कहीं ना किसी वाटर बॉडीज़ के पास कंसंट्रेटेड है. और सिर्फ रिवर वैलीज़ की बात नहीं, आप देखिए जितने भी वर्ल्ड की पुरानी आपकी सिविलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इंडस सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो सिटीज़ वहाँ पे डेवलप हुई. ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, वी हैव द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ यू कैन से हुआंगो वैली, ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ यू कैन से नाइल रिवर वैली. तो ये सारे कहीं ना कहीं रिवर वैली के साथ होने वाली एसोसिएटेड सिविलाइजेशन है जो कहीं ना कहीं आसपास की लैंडफॉर्म से इन्फ्लुएंस होती है. नाउ लेट्स टेक द सेकंड टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल. Mountain ranges, for example, may restrict transportation and farming but can promote mining, while flat plains ideal for agriculture. आप देखिए जनरली आप छोटा नागपुर प्लेटो जाइए, वो पूरा माउंटेनस रीजन है, हिली रीजन है, पर बहुत ज़्यादा मिनरल रिच बेल्ट मानी जाती है.
अरावली जो कि गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली आती है, तो बीच में कई सारे ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से आपको मिनरल बेड के रूप में कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। इनफैक्ट ताजमहल का जो मार्बल है वो भी राजस्थान में अरावली के पहाड़ से निकाला गया एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कहीं ना कहीं हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं कोस्टल एरिया की, तो आप देखिए कि जितने भी आप कोकोनट प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कोस्टल रीजन पे ही पाया जा सकता है, क्योंकि समुद्र का जो नमकीन पानी है बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। सो ये सारे कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत वायबल हैं, क्योंकि इनका लैंडफॉर्म का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3, कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स माउंटेन्स, रिवर्स, द डेजर्ट्स and other features which can shape and the cultural practices and traditions. For instance, certain rituals and festivals may be tied for the seasons or specific natural landmarks, like Maru Mahotsav. Right? In some regions, mountains and rivers had religious significance. For example, we celebrate our Kumbh festival, जो भी कुंभ का मेला होता है वो हर 4 साल बाद इन 4 सिटीज़ के अंदर लगाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और 4 सिटीज़ योर उज्जैन, राइट। तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं नेचुरल बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंड कम्युनिकेशन। सो रग्ड लैंडफॉर्म्स सच एज द माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स कैन लीड टू द आइसोलेशन, लिमिटेड कल्चर एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस। हिमालय एक ऐसा माउंटेन है जो बेटा चाइनीज़ कल्चर को इंडियन कल्चर को सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि हिमालय माउंटेन नहीं होता तो क्या पॉसिबिलिटी थी? उसकी पॉसिबिलिटी ये थी कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ कल्चर काफ़ी कुछ इंडिया में आ चुका होता और हिंदू कल्चर जो है कहीं ना कहीं चाइना तक पहुंच गया होता। काफ़ी सारे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं एक माउंटेन स्ट्रक्चर को या कहीं ना कहीं फिजिकल बैरियर को बीच में रिस्ट्रिक्शन करते हैं। सो आइसोलेशन, कम्युनिकेशन। सो रग्ड लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स और डेजर्ट्स कैन लीड टू आइसोलेशन, लिमिटिंग कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. This can result in the development of unique language, customs and traditions. Conversely, plains and valleys promote easy communication and the spread of ideas. For example, Himalayas. Himalayas ऐसा नेचुरल लैंडफॉर्म्स है जो कहीं ना कहीं दो कल्चर ट्रेट्स दैट इज चाइनीज़ कल्चर और इंडियन कल्चर को सेपरेट करने में हेल्प करता है. Our next point is resource availability. So landforms determine the availability of natural resources which can directly impact the lifestyle and the culture of a region. For example, areas rich in minerals, forest or fertile lands will shape the economy and social structure of the community. आप इंडिया के एग्जाम्पल ले लीजिए. इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर कंसनट्रेटेड है, ठीक है, और जो भी पॉपुलेशन साउथ इंडिया में उस कंसनट्रेशन कोस्टल रीजन में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी जलवायु और साथ साथ फ्लैट लैंड मिलता है जहाँ वो पैडी कल्टिवेशन कर सकते हैं, राइट. तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, that is climate influence. The shape of the land affects local climate patterns which in turn influence agriculture, food availability and lifestyle. For example, mountain range can create rain shadows leading to drier conditions on one side and the wetter conditions on the other sides. आपने कहीं ना कहीं जब प्रेसिपिटेशन या वर्षा के बारे में पढ़ा होगा, आपने 3 तरह की वर्षा पढ़ी होंगी. एक ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा होगा, एक आपने फ्रंटल रेनफॉल पढ़ा होगा, एक आपने कन्वेक्शन रेनफॉल पढ़ा होगा. तो ओरोग्राफिक रेनफॉल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरोग्राफिक पर्वत के बीच में होने से होने वाली वर्षा, और ये वो वर्षा है जो कहीं ना कहीं एक साइड तो बहुत ज़्यादा बरसात करती है, और जब वही मॉइस्चर लेडन विंड्स जब माउंटेन को पार करके दूसरी तरफ जाती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, वहाँ सूखा जगह बनाती है, इसको हम लोग रेड शेडो जोन कहते हैं, ठीक है. तो माउंटेन की प्रेजेंस भी कहीं ना कहीं बरसात को होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इंडिया में जो भी मानसून है हिमालय की वजह से और इंटरमीडिएट माउंटेन की वजह से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और यही माउंटेन्स होते हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात करने में हेल्प करते हैं. तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो माउंटेन हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो डेजर्ट रीजन है, चाहे फॉरेस्ट रीजन है, वैली रीजन है, जितने भी टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं जहाँ तक सोशल और कल्चरल लाइफ का बात होती है. नाउ द ओवरऑल लैंडफॉर्म्स हेल्प डिफाइन हाउ पीपल लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, शेपिंग देयर हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चरल आइडेंटिटी. आपका इतिहास, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका जो है कल्चरल व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं आपके लैंडफॉर्म के द्वारा ही पहचाना जाता है. सो लैंडफॉर्म प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स including economic, environment and cultural aspects. Some of the opportunities associated with the landforms include lakes, valleys and beaches which attract tourists, provide a source of income through ecotourism, adventure tourism and culture tourism. For example, mountain climbing in the Himalayas, beach vacations in coastal regions are some of the best examples. लोग आते हैं, गोवा जाते हैं, हिमालय में कहीं ना कहीं टूरिज्म करने जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, सारे एग्जाम्पल हैं जो कहीं ना कहीं माउंट से रिलेटेड है. सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चर. फर्टाइल प्लेन, रिवर वैली एंड द फ्लड प्लेन्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज for agriculture, providing the land need for growing crops and rising livestock.
Irrigation from various rivers and lakes can support the agriculture in areas where natural rainfall is insufficient. For example, Government of India ने after independence इंदिरा गांधी कैनाल फॉर्म की थी फ्रॉम हरिके बैराज, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब, और वो राजस्थान के वेस्टर्न मिड पार्ट तक गई है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन थी. इस कैनाल की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाए, राइट. तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने. थर्ड पॉइंट इज माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज. So mountain ranges or hills or plateaus may contain valuable mineral deposits, leading to mining opportunities. Oil, gas and coal extraction can also take place in specific landforms such as sedimentary basins. So for example, we have a lot of mineral belt. We found a huge mineral belt on Chota Nagpur Plateau. Side by side, we have some mineral belts in the Krishna Godavari basin where we have some resources of hydrocarbons, fossil fuels, right? So we have lots of examples where we have seen. So windy location on high plateau or the coastal cliffs provide opportunities for wind energy generation. Areas with abundant sunlight like deserts are ideal for the solar energy projects. जनरली आपने देखा होगा कि नीमच एक ऐसा रीजन है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है जो बहुत सारी सिटीज़ को और बहुत सारे विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. इससे तमिलनाडु, गुजरात, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन एनर्जी मिलती है और साथ साथ विंड एनर्जी भी है, जिसकी तरह से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए हम लोग काफ़ी सारे पोटेंशियल प्लांट्स लगाए हैं और उससे बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है. नेक्स्ट इज़ वाटर रिसोर्स. So river valleys and lakes are crucial for fresh water supply, supporting communities, agriculture and industries. So dam constructions in hilly or the mountainous regions can create reservoirs for water storage and hydroelectric power generations. कई सारे डैम हैं हमारे पास. We have बाघड़ा नंगल डैम, we have हीराकुंड डैम ऑन महानदी, we have नागार्जुन सागर डैम. ठीक है, कई सारे ऐसे डैम हैं हमारे पास जहाँ पे हम लोग वाटर रिजर्व करते हैं. पानी को हम लोग कहीं ना कहीं चैनलाइज करके इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं और उस डैम के माध्यम से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग लैंड इज आइडियल फॉर बिल्डिंग सिटीज, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. Coastal regions can serve as a port and hub for trade and industries. Next, we can have cultural and heritage values. So certain landforms like caves or historical sites near mountains and rivers are valuable for cultural heritage and archaeological studies. So landforms may also hold spiritual or religious significance for local communities, contributing to their identity and heritage. For example, you can say the Bhimbetka caves, you can say that Ajanta Ellora caves, you can say that lots of mountain structures, right? ये सारे caves हैं जो कहीं ना कहीं historical हमारे पास identity को लेके आती हैं. इससे हमें अपनी glorious past के बारे में information मिलती है. Next, we can say that the conservation and biodiversity. So the diverse landforms often create diverse ecosystem, offering opportunities for conserving and biodiversity. Protecting areas in mountains, forest or the wetlands help preserve wildlife and ecological balance. For example, we can say that we have national parks, we have wildlife sanctuaries, we have biodiversity national parks, biodiversity parks, right? इसके अलावा हमारे पास कुछ रामसर साइट्स भी हैं जो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं. ये सब जनरली नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से ही हैं, जिसकी वजह से हमारा फौना एंड फ्लोरा बहुत ज़्यादा नरिश्ड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. So this may be concluded that each landforms offer unique opportunities depending on its specific characteristics, location and context. नमस्कार, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज जिसकी शुरुआत होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. सो हमारा पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि द हाईलैंड्स विद a लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप एंड राउंडेड टॉप आर कॉल्ड. तो इसके ऑप्शंस हैं माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटो एंड प्लेन. तो हमारा राइट आंसर है हिल्स. Next question, where are the Alps mountain located? Options are Asia, Europe, Africa and Australia, and the right answer is Europe. Let's move to another question. Where do the Andes mountain lie? So the options are Asia, Northern America, Southern America, Africa. The right answer is South America. Next question, when can we find Mount Everest? So options are between China and Nepal, between Nepal and Sikkim, between China and Bhutan, and between Bhutan and China. And our right answer is between China and Nepal. Let's move to the other question. Where is Kanchenjunga located? Our options are between China and Nepal, between Nepal and Sikkim, between China and Bhutan, and between Bhutan and China. And the right answer is between
नेपाल एंड सिक्किम। माउंट एंकाकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? माउंट एंकागुआ जो है आपकी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये किस माउंटेन रेंज के अंदर आती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स एंड रॉकीज। तो राइट आंसर इज एंडीज। सो माउंट गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी मानी जाती है। ऑप्शंस में एंडीज, हिमालयाज, एल्प्स एंड अरावलीज। तो आवर राइट आंसर इज अरावलीज। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? किस महाद्वीप के अंदर माउंट किलिमंजारो जो है एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर इज अफ्रीका। यस, यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रीजन? ऑप्शंस आर ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, साउथ यूरोप और नॉर्थ यूरोप। तो द राइट आंसर इज वेस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपके विकल्प हैं अन्नमुदी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी और गुरु शिखर। तो राइट आंसर इज अन्नमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स? निम्नलिखित जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा माउंटेन रेंज सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक गिनी जाती है? अरावली माउंटेन, शिवालिक्स, वेस्टर्न घाट्स और महादेव हिल्स। तो आपका जो आंसर है वो है आपका अरावली माउंटेन। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग्स आर कॉल्ड यंग माउंटेन्स बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग? एक ऐसी पर्वतमाला जो अभी भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, अभी भी हाइट गेन कर रही है, वो पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं हिमालयन रेंजेस, विंध्याचल रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस और राजमहल रेंजेस। तो आपका जो मेन आंसर है वो है आपका हिमालयन रेंज। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफरस ट्रीज? पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन में जो कॉनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं उसमें से निम्न से कौन सा पेड़ है जो कॉनिफरस ट्रीज के अंदर नहीं गिना जाता है? पाइन, देवदार, बॉम्बू एंड स्प्रू। सही आंसर है बैम्बू, दैट इज बांस, क्योंकि बांस तो पेड़ है ही नहीं, ये एक तरह की घास है जो कहीं ना कहीं पतझड़ वाले वनों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इन्वोकेशन टू द हिमालयाज? आपके ऑप्शंस हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोवर्षियन और मेघदूतम। तो सही उत्तर है कुमार संभवम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयन फौना? आपके ऑप्शंस हैं द गोल्डन ईगल, द पेरेग्रीन फैल्कन, द कैनेडियन लेक्स एंड द वन हॉर्न रिनोसरस। और जैसा कि आप जानते हैं कि वन हॉर्न रिनोसरस सिर्फ और सिर्फ इंडिया की काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही पाया जाता है और हमारा जो राइट आंसर होगा वो है वन हॉर्न रिनोसरस। अब चलते हैं अपने नए सेक्शन में, दैट इज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म्स? लैंडफॉर्म्स की मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो आंसर है माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटोज आर द मेजर कैटेगरीज। माउंटेन्स माने पर्वतमालाएं, प्लेटोज माने पठार, प्लेन माने नदियों द्वारा बनाए गए मैदान। वेयर डू द हिमालयन माउंटेन लाई? आपके हिमालय माउंटेन कहाँ स्थित हैं? सो हिमालयन माउंटेन लाई इन इंडिया, इन नेपाल, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। वेयर डू वी फाइंड कॉनिफरस माउंटेन्स? हमें कॉनिफरस टाइप के पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? आपका उत्तर है कॉनिफरस माउंटेन्स आर फाउंड इन द माउंटेनस रीजन। अगला प्रश्न, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ रिवर गंगा? उसका उत्तर है कि गंगा नदी की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेदर कंडीशन in which a huge amount of rainfall created a flood-like conditions in a short period of time? कहने का तात्पर्य है छोटे ही समय में आने वाली वो मौसमी बदलाव को बताइए जो उच्च स्तर पर कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। वेदर कंडीशन का नाम है फ्लैश फ्लड। अगला प्रश्न, व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या है, जिसको हम लोग भूस्खलन भी कहते हैं? सो लैंडस्लाइड इज अ सडन कोलैप्स ऑफ रॉक और डेब्रिक फ्रॉम द माउंटेन साइड। मतलब है कि जो भूस्खलन है वो पर्वतीय क्षेत्र से गिरने वाली उन सभी रॉक्स, उन सभी चट्टानों और मलबे का स्वरूप है जो कहने ऊंचाई से जमीन की ओर गिरते हैं। अगला प्रश्न, विच इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे विशाल पठार कौन सा है? तो उसका एक ही उत्तर है तिब्बतन पठार, जो कहीं ना कहीं एशिया के अंदर स्थित है और एशिया के अंदर भी वो है चीन गणराज्य के अंदर गिना जाता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ तिब्बतन प्लेटो? तो द एवरेज हाइट ऑफ द तिब्बतन प्लेटो इज अबाउट 4500 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से 4500 मीटर ऊंचाई पर तिब्बतन का पठार जो है अवस्थित है। अगला प्रश्न, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ प्लेटोज? पठारों के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? सो प्लेटोज आर फ्लैट स्टोनी सरफेस स्ट्रक्चर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। कहने का तात्पर्य है कि जो आपके पठार होते हैं एक ऐसी स्थलाकृति हैं जो ऊंचाई पे काफ़ी ज़्यादा समतल होते हैं, उसका जो पृष्ठ होता है बहुत ज़्यादा पत्थरीला होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है और कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत अच्छे खनिज के भंडार पाए जाते हैं। हाउ वाज दक्कन प्लेटो फॉर्म्ड? प्रश्न का मतलब है कि दक्कन का पठार किस तरह बना। सो दक्कन प्लेटो फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन इन द पास्ट।
कहने का तात्पर्य है कि जो दक्कन का पठार है वो इतिहास में होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न लावा के निक्षेप से हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने नए सेक्शन की, जिसका नाम है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, व्हाट डू मीन बाय द फिजिकल लैंडस्केप? जिसका मतलब है कि फिजिकल लैंडस्केप, भौतिक भूदृश्य के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका क्या मतलब है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस दैट कैन बी व्यूड एट वन टाइम एट ए ग्लांस। यदि आप किसी एक ही भूदृश्य को देखते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक सारी भौगोलिक इन्फॉर्मेशन को, सारी भौगोलिक जानकारी को एक साथ दे देता है, वो कहीं ना कहीं आपका भौतिक भूदृश्य या फिजिकल लैंडस्केप कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी तरह की भौगोलिक सूचनाओं का समागम होता है, क्षेत्र विशेष के ऊपर इंगित होता है और उसकी समझ जानकारी, भौगोलिक जानकारी कहीं ना कहीं आपको एक बार की दृष्टि में ही, एक बार की ग्लांस के अंदर दे देता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द मेजर फीचर ऑफ माउंटेन? एक पर्वत का मुख्य लक्षण क्या होता है? So mountain can be recognized by their broad base, steep slopes and a narrow summit. Due to high elevation, sometimes the top of the mountain is covered by the snow. कहने का तात्पर्य है कि माउंटेन्स, जो पर्वतमाला है या पर्वत होता है, वो एक ऐसी सलाह करती है जिसका आधार बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, उसकी जो ढाल होती है बहुत ज़्यादा खड़ी होती हैं, ऊपर का शिखर होता है वो एक बहुत ज़्यादा नैरो होता है। कभी कभी इन पर्वतों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, हिमाच्छादन होता है। हिमाच्छादन का मतलब ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाते हैं, क्योंकि ऊपर पे आपका हिमपात बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसको हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। हाउ डू रिवर फॉर्म्स? अगला प्रश्न है कि नदियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? व्हेन द स्नो ऑन हाई ऑल्टीट्यूड मेल्ट्स ड्यूरिंग समर्स, द कॉन्सिक्वेंट वाटर ऑफ दिस मेल्टिंग स्नो फ्लोज डाउन हिल्स थ्रू ए वेरियस स्ट्रीम्स एंड फॉर्म द रिवर। कहने का तात्पर्य है कि जब काफ़ी ऊंचाई पर जब हिमपात होता है, हिमपात होने की वजह से जब वहाँ पे सब जगह बर्फ़ जम जाती है और ग्रीष्मकाल आने के बाद जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उस पिघले हुए पानी का जो रूपांतरण है वो छोटी छोटी नालिकाओं द्वारा एक बड़ी नालिका में जाता है और वो बड़ी नालिकाएं मिलकर एक नदी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, और कभी कभी इन नदियों के अंदर जो पानी का जो प्रेक्षण है, पानी का जो बहाव है, वो भौमजल स्तर के द्वारा भी कहीं ना कहीं पहुँचाया जाता है। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? वर्षण क्या है? When the water from the atmosphere reaches the ground in any form is called the precipitation. वातावरण में उपस्थित जो भी आपका वाष्प है वो जब किसी भी ना किसी वजह से जब टेम्परेचर या तापमान के अंदर गिरावट आती है तो वो कहीं ना कहीं धरती पे आता है। आने का तरीका और माध्यम कुछ भी हो सकता है, पर जनरली जब भी पानी या जल धरती पे आता है उसको हम लोग वर्षण कहते हैं। वर्षण के कई रूप होते हैं, जो आमतौर पर हम लोग देखते हैं वो है वर्षा, दैट इज़ रेनफॉल। देन यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है या कोई हाई एलिवेटेड माउंटेन है तो उसके ऊपर हम लोग स्नोफॉल देखते हैं। और सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो आप सुबह सुबह देखेंगे कि घास की ऊपर ओस की बूंदें होती हैं, जिसे शबनम की बूंदें कहा जाता है। और जब कभी तूफान आता है तो तूफानों के साथ ओले पड़ते हैं, देखा होगा आपने, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, कई जगह बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, टेनिस बॉल जितने साइज़ के भी बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, उसको हम लोग हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि भी कहते हैं। ये सभी जो है वर्षण या प्रेसिपिटेशन के प्रारूप होते हैं। वाई आर हिमालयाज कॉल्ड यंग माउंटेन्स? हम हिमालय को नवीन पर्वत क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, हिमालयाज आर न्यूली फॉर्म माउंटेन्स रेंज इन इंडिया। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अदर माउंटेन लाइक्स अरावली इज टेकिंग शेप, दे वर नॉट इवन बॉर्न। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय जो है नए उत्पन्न होने वाले, नए रूप से परिवर्तित होने वाले नए तरीके के पर्वतमालाएं हैं। और यदि हम दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारत की यदि सभी पर्वतमालाओं का अध्ययन किया जाए तो उसमें जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो मानी जाती है वो है अरावली पर्वतमाला। तो यदि हम ये इस तरह से कहें कि अरावली पर्वतमाला जिस समय बन रही थी उस समय तक हिमालय माउंटेन्स का या हिमालय पर्वतमाला का नामो निशान नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि अरावली पर्वत बनने वाले माउंटेन्स में हिमालय पर्वत भी एक माउंटेन है और इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स? पर्वत और पहाड़ी में अंदर क्या अंतर आता है? तो उसका आंसर है कि माउंटेन आर लार्ज मास ऑफ एलिवेटेड लैंड मास ऑलमोस्ट इन कॉनिकल फॉर्म। माउंटेन्स आर हायर बॉडीज विद ऑलमोस्ट स्टीपर स्लोप्स। ऑन द अदर हैंड, हिल्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ लोअर हाइट्स, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स। कहने का मतलब यह है कि जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत होते हैं, वो एक ऐसा इस्लाह करती है जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है। जो उसका जो ऊपरी शिखर होता है वो एक कोन के रूप में दिखाई दिया करता है और इसके जो ढाल होते हैं बहुत ज़्यादा खड़े ढाल माने जाते हैं। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो पहाड़ी जो होती है उसका जो ढाल होता है वो पर्वतमालाओं के मुकाबले काफ़ी खड़ा नहीं होता, बहुत जो है जेंटल होता है, बहुत सीधा होता है। और इसकी जो शिखर है वो किसी चोटी के रूप में ना होकर एक गोलाकार के रूप में कहीं ना कहीं सपाट प्लेटफॉर्म के रूप में देखी जाती है। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कितने तरह के वर्षण देखे जा सकते हैं, कह सकते हैं वर्षा जल। सो व्हाट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स रीच ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड रेन और रेनफॉल। Snowfall, water in the form of snowflakes reaches on the mountain peak and the form the glaciers are the direct outcome of it. पहले हम बात करते हैं रेनफॉल।
तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द रेन और रेनफॉल। पानी जो भी वाष्प कहीं ना कहीं संघनित होकर द्रव्य के रूप में परिवर्तित होता है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा वो द्रव आसमान से धरती के ऊपर आता है, तो उसे हम लोग वर्षा जल के रूप में देखते हैं। अब यही वर्षा जल तापमान की कमी के कारण द्रव्य रूप में ना रह के हिम रूप में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं ऊंची पहाड़ी पर या कहीं ना कहीं ऊंचे स्थानों पर हम लोग वर्षा ना देख के हिमपात देखते हैं, तो उसको हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। आपकी ओस या शबनम की बूंदें की स्मॉल एंड टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रासेस एंड लीव्स इन द मॉर्निंग टाइम, इट इज कॉल्ड द ड्यू। सुबह के टाइम जब ज़मीन का तापमान बहुत ज़्यादा 0 से भी कम हो जाता है, तो जो नीचे के एटमॉस्फेयर में जो मौजूदा जल वाष्प है वो संग्रहित होकर पानी के रूप में कन्वर्ट होता है, और ये पानी कहीं ना कहीं आपको हरी घासों के ऊपर देखने को मिल जाता है। अगला है फ्रॉस्ट, जिसको हम कहते हैं पाला। ड्रॉप्स फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर्स, इट इज़ कॉल्ड द फ्रॉस्ट। जब जाड़ों के समय जो ओस की बूंदें जम जाती हैं वो पाला कहलाती हैं, और ये आपकी एक कृषि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। हेल स्टोन्स, हेल स्टोन का मतलब ओलावृष्टि। जब भी आप कभी तूफान या किसी बहुत ज़्यादा बरसात वाले एरिया में गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े बर्फ़ के गोले, छोटे छोटे बर्फ़ के गोले, और कई बार देखा भी गया है कि बड़े बड़े ओले जो हैं कार के ऊपर, बस के ऊपर गिरते हैं और वहाँ के शीशों को और इमारत को नुकसान पहुँचाते हैं। अब मुड़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज़ माउंटेन रेंज? पर्वत श्रेणी क्या होती है? When mountain are not isolated and arranged in a sequence, कोई पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, वो पर्वत श्रृंखला के रूप में है, वो अकेला नहीं है और एक बहुत ज़्यादा सीक्वेंस के अंदर पाया जाता है, उसको हम लोग माउंटेन रेंज कहते हैं। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं हिमालयाज, द एंडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, एल्प्स पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला। इसके उदाहरण, अरावली आर ओल्डर देन द हिमालयाज, स्टिल दे आर शॉर्टर इन हाइट्स। वाई? ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला जो है हिमालय से भी पुरानी पर्वतमाला है, बट इनका जो ऊंचाई है वो हिमालयन पर्वतमालों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है, अरावलीज आर ओल्डर माउंटेन्स इन इंडिया। थ्रू ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट डिग्रेडेशनल एक्टिविटीज हैव लोअर्ड इट डाउन। Additionally, human activities like mining, quarrying, constructions are also responsible for the loss of height. कहने का तात्पर्य है कि अरावली जो है माउंटेन श्रृंखला जो है हिमालय से भी बहुत पुरानी है, बट जैसे जैसे टाइम बीता गया, जैसे समय बीता चला गया, उस माउंटेन सीरीज़ के ऊपर जो है आपकी डिग्रेडेशनल एक्टिविटीज़ जो डेन्यूडेशन इरोजनल को मिला के बनती हैं, जिसके अंदर डेन्यूडेशन और इरोजन दोनों आता है, उनके साथ वो उनकी जो ऊपर की हाइट है वो धीरे डिग्रेड होती चली गई और वो कहीं ना कहीं अब रेलिक माउंटेन के रूप में देखी जाती है। और समय के साथ साथ बढ़ता दबाव भी कहीं ना कहीं इस माउंटेन को अपनी चपेट में ले बैठा है, जैसे कि क्वेरिंग, डिगिंग, ठीक है, माइनिंग, इस सब की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है पर्वतमाला को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। व्हाट इज़ टेरेस फार्मिंग? ठीक है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग स्टीप स्लोप ऑफ हिमालयन माउंटेन इनटू स्टेप्स सो दैट ए पीस ऑफ फ्लैट लैंड कुड बी अचीव्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इस तरह की फार्मिंग है जहाँ देखा जाता है कि जो माउंटेन है, जो पर्वतमाला है, उसका जो ढाल है बहुत ज़्यादा खड़ा ढाल होता है। उस ढाल को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का प्लेट सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर नीचे की ओर मुड़ते हैं दूसरे ढलान की ओर, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो प्लेट सरफेस में बन जाए। इस तरह से प्लेट सरफेस में 2-3 तरह की ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि दूर से देखने वाला लगता है कि ये कोई ना कोई सीढ़ी है, कोई ना कोई टेरेस है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम खेती करते हैं तो उसको हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय माउंटेन एनवायरनमेंट? पर्वतीय वातावरण से आपका क्या मतलब है? सो उसका उत्तर है, माउंटेन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक एलिमेंट्स। Abiotic element comprises snow-covered valleys, glaciers, streams, rivers, etc. While a biotic environment consists of animal world like mountain hare, Himalayan tiger, peregrine falcon, Canadian lynx, yak, leopard, etc. The vegetation consists mainly the mountain forest which include trees of fir, spruce and deodar. तो माउंटेन एनवायरनमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा वातावरण है जिसके अंदर सभी तरह के जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक घटकों में आप देख सकते हैं कि कई तरह के जंगली जानवर, टैबर, पेरेग्रेशन फैल्कन, कैनेडियन लेक्स, याक, लियोपोर्ड जैसे जानवर पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखा जाता है कि वनस्पति के रूप में वहाँ पे आपके कॉनिफरस ट्रीज जो हैं, जिसमें कई उदाहरण है आपके सामने, फर्स, स्प्रूस एंड देवदार टाइप के पेड़ आपके पाए जाते हैं। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर मूव करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द प्लेन एरियाज? हाउ आर प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म? मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं और ये किस तरह से बने? तो इसका उत्तर है, plains are landforms that have an extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. They are generally not more than 300 meters above mean sea level. Throughout the mountainous region, rivers flow at a great speed. As they leave the mountainous region, the speed goes down
and the sediments or the silt carried by river water start to be deposited. Slowly and gradually, the flat surface of this deposited strata became the plain area. Haryana, Uttar Pradesh and Bihar lie in the plain area as well. Let's move to the NCERT zone. So our question is, in what type of landforms is your town, village, city located? Which features mentioned in this chapter do you see around you? देखिए बेटा, इसका आंसर तो आपको खुद ही देना पड़ेगा. आप जम्मू कश्मीर से भी हो सकते हैं, आप राजस्थान से भी हो सकते हैं, आप गोवा से भी हो सकते हैं, आप मध्य प्रदेश से भी हो सकते हैं, आप आसाम से भी हो सकते हैं, आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप प्रायद्वीप से भी हो सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल से भी हो सकते हैं, आप भारत के कहीं से जिससे भी हो सकते हैं. तो इस प्रश्न का उत्तर आपके आसपास जो वातावरण है उसके संदर्भ में लिखा जाएगा. मैं हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा जो आंसर होना चाहिए आप उसको देख के अपने उत्तर का निर्माण कर सकते हैं. सो एसोसिएटेड विद द आंसर बेस्ड ऑन योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फरीदाबाद, जहाँ पे मैं रहता हूँ. आवर होम टाउन, विलेज एंड सिटी दैट इज़ फरीदाबाद. दिल्ली NCR, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली मुश्किल से 10 से 20 किलोमीटर दूरी पे है. प्लेन एरिया है, पूरा समतल रीजन है विद द बैंक ऑफ रिवर यमुना. यमुना रिवर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है. यहाँ पे जो क्लाइमेट है ऑलमोस्ट ड्राई रहती है. बरसात सिर्फ मानसून पीरियड में ही होती है. और मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसके आसपास एक बड़ी कैनाल निकाली गई, एक बड़ी नहर निकाली गई है और दिल्ली के कालिंदी कुंज से आगरा तक जाती है और साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी अवस्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो बैक टू आवर इनिशियल ट्रिप फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज एंड अल्मोड़ा. डिस्क्राइब द 3 लैंडफॉर्म्स यू कैम अक्रॉस ऑन द वे. तो इसका आंसर है कि इसके अंदर, इस प्रश्न के अंदर 3 चीज़ पूछी गई हैं: छोटा नागपुर, प्रयागराज और अल्मोड़ा. तो मैं बताना चाहूँगा, छोटा नागपुर एक पठारी रीजन है जो झारखंड राज्य के अंदर आता है. झारखंड राज्य तो एक ऐसा राज्य है जो छोटा नागपुर रीजन के लगभग 80% क्षेत्र को घेरे हुए है, बट इसका कुछ पोर्शन आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अंदर भी आता है. दूसरा है प्रयागराज. प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है, जो गंगा और यमुना 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ है और यहाँ पे आप देखते हैं पूरा समतल मैदान है. प्रयागराज एक पुराने ज़माने में और वर्तमान में भी एक प्रशासनिक शहर के रूप में दिखाया गया है. तीसरा है अल्मोड़ा. अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के अंदर एक प्रांत है, माउंटेन रीजन को दर्शाता. अगला प्रश्न, लिस्ट ए फ्यू फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट्स इन इंडिया अलोंग विद द लैंडफॉर्म्स एंड विच दे आर फॉर्म. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भारत में कौन कौन से तीर्थ स्थल को ध्यान में रख के इसको अपने उत्तर का निर्माण करते हैं. मुझे जो इस्लाह करती के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी लैंडफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी तीर्थ स्थल नज़र आया, मैंने उसको ध्यान रखने की कोशिश की है. उम्मीद करता हूँ आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखेंगे. तो मेरा जो पहला उत्तर है वो है हरिद्वार. हरिद्वार एक ऐसी सिटी है जो उस जगह स्थित है जो फुटहिल कहलाता है. फुटहिल एक ऐसा रीजन होता है जहाँ नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के मैदानी क्षेत्र में आती है. तो हरिद्वार इज़ ए फुटहिल ऑन गंगा रिवर. फिर कुछ शहर हैं जो कहीं ना कहीं माउंटेन रीजन पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आते हैं, जिसमें ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ये कई ऐसे प्रसिद्ध नाम है जो जनरली आप लोगों ने हर जगह सुने होंगे. फिर आता है वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज. ये वो पुराने नगर हैं जो कहीं ना कहीं अपनी रिच कल्चरल एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं. हमारे अंदर जो आध्यात्म है, जो भी हमारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं इसके आसपास घूमती है. हमारे देवी देवता भी कहीं ना कहीं इसी सिटी के आसपास जो है पूजे जाते हैं और ये पूरे एक मैदानी एरिया के अंदर पाया जाता है. हम बात करते हैं उज्जैन और नासिक. तो उज्जैन और जो है वो आपकी मालवा प्लेटो के अंदर स्थित है. अजमेर शरीफ राजस्थान के अरावली क्षेत्रों में तीर्थ स्थल है जहाँ पे इस्लाम को मानने वाले लोग ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पे अपनी पूजा इबादत करते हैं, जो एक ड्राई हिल रीजन के अंदर देखा गया है. उसी तरह रामेश्वरम दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से पास में तमिलनाडु राज्य के अंदर एक ऐसा छोटा सा तीर्थ स्थल है जहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है और ये तटीय क्षेत्र या कोस्टल रीजन को प्रदर्शित करता है. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. यदि हम लोग सत्य और असत्य को देखते हैं तो आंसर आता है. पहला क्वेश्चन है कि हिमालयज आर यंग माउंटेन विच राउंडेड टॉप्स. तो जनरली जाहिर सी बात है जो राउंडेड टॉप्स होते हैं वो हिल्स के होते हैं, तो ये कथन हमारा गलत है. प्लेटोज यूजली राइज शार्पली एटलीस्ट ऑन वन साइड. जी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक साइड जिसका जो है स्टीप स्लोप होता है, ठीक है, शार्प होता है. तीसरा पॉइंट है माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरली इनका जो आधार है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड माना जाता है. फोर्थ पॉइंट, माउंटेन प्लेटोज एंड रिवर्स इन इंडिया हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना. ये गलत है, क्योंकि हर जगह की किस इस्लाह करती है और उसकी के अकॉर्डिंग ही वहाँ का फ्लोरा और फोना जो है कहीं ना कहीं डिसाइड होता है. अगला प्रश्न है गंगा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि यमुना इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है, ये आंसर है. सो डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फोना. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो फोना एंड फ्लोरा डेजर्ट और ड्राई रीजन मिलेगा वो आपको मानसूनल रीजन के अंदर या माउंटेनस रीजन के अंदर नहीं मिलेगा. मेल्टिंग ऑफ स्नो फीड्स रिवर्स.
ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब से जैसे बर्फ़ पिघलेगी वही पानी कन्वर्ट होकर रिवर्स के अंदर आएगा, वही नदियों के अंदर पानी को लेके आता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर डिपॉजिटेड इन द प्लेन मेक्स द लैंड फर्टाइल। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जितने भी उत्तर भारत में मैदानों का निर्माण हुआ, वो निर्माण नदियों द्वारा लाई गई गाद या सेडिमेंट अवसाद के निक्षेपण के बाद ही हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, जी नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं। इसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट एंड देयर हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया के अंदर है, वो है आपका लद्दाख। गोबी, तकला मकान, लद्दाख, ये कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। और जब हम बात करते हैं थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, मोहेव डेजर्ट, ये सब वो डेजर्ट हैं जो कहीं ना कहीं हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल पेश करते हैं। मैच वर्ड्स इन द पेयर। माउंट एवरेस्ट जो कि है आपका क्लाइंबिंग के रूप में काम आता है। फिर हम बात करते हैं राफ्टिंग, तो राफ्टिंग जो है कहीं ना कहीं रिवर पे ही की जाती है। कैमल, कैमल आपको सिर्फ डेजर्ट के अंदर ही मिलता है। प्लेटो, प्लेटो जो है तिब्बतन प्लेटो को हम देखते हैं, तो वो प्लेटो इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जब हम बात करते हैं गैंगटिक प्लेन, तो गैंगटिक प्लेन जो है राइस फील्ड को कहीं ना कहीं शो करता है। वाटरवे की, तो वाटरवे जो है कहीं ना कहीं गंगा के अंदर वाटरवे देखा गया है और नेशनल वाटरवे के रूप में गंगा रिवर यूज़ भी होती है। यदि हम बात करते हैं माउंट किलिमंजारो, तो किलिमंजारो जो है आपका अफ्रीका के अंदर हाईएस्ट पीक है। और यदि हम बात करते हैं यमुना की, तो यमुना जो है आपका एक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी क्वेरी के लिए हमारी बुक को रेफ़र करते रहिए। थैंक यू।